I welcome you all to English class. Now let us start this beautiful day with prayer and thank Almighty for all the things we have. So, this is chapter number 5 in your books, Nouns, in which we are going to study about genders. Here we are to learn about identification of masculine and feminine nouns, identification of common gender and neuter gender nouns, changing the nouns from masculine to feminine and vice versa. Vice versa means masculine to feminine and feminine to masculine. यानी मेल का फीमेल में चेंज और फीमेल का मेल में चेंज. Now look at the example. Riya is a girl. She is Rahul's sister. यहाँ पर रिया एक गर्ल है यानी एक फेमिनाइन जेंडर है और उनके लिए हमने फेमिनाइन जेंडर्स कौन कौन से यूज़ किए हैं? गर्ल एंड सिस्टर. राहुल इज़ अ बॉय. ही इज़ रियाज ब्रदर. तो यहाँ पर हमने राहुल के लिए कौन कौन से जेंडर्स यूज़ किए हैं? वो मैस्कुलाइन जेंडर है. हमने कौन से यूज़ किए? बॉय एंड ब्रदर. Hello dear children, how are you? Such a bright and beautiful morning it is. So, let us learn something new and interesting today. Since many days you are learning about nouns. Nouns is a vast topic, you know. You have learned about nouns which are common and proper nouns. Nouns you have learned countable and uncountable nouns. Nouns you have also learned in the form of singular and plural. But today we are going to start learn about genders, which are also the nouns. The nouns can be categorized into 4 types of genders. That is masculine, feminine, common and neuter. You all are aware of masculine and feminine genders. क्या होते हैं बेटा मैस्कुलाइन है जेंडर्स? हम नाउन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं.
मैस्कुलाइन यानी मेल कैटेगरी, यानी जो बॉयज की कैटेगरी में आते हैं, फेमिनाइन यानी जो फीमेल यानी गर्ल्स की कैटेगरी में आते हैं, देन कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। तो मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर्स के बारे में तो आपको पता है, जैसे फादर इज अ मैस्कुलाइन जेंडर, मदर इज अ फेमिनाइन जेंडर, सिमिलरली बॉय इज अ मैस्कुलाइन जेंडर, and girl is a feminine gender. So I'll show you some toys and you will just let me know what is this. This is a tiger. So tiger is masculine or feminine? Yes, it is masculine. Can you tell me the feminine of tiger? Yes, it is tigress. Same way. Now see, what is this? This is a cow. Cow is a feminine gender and masculine gender of cow is bull or ox, we can also say. And see, what is this? This is a fox. Fox is a masculine gender and the feminine gender of fox is vixen. Similarly, you must have seen this common animal and some must be having it as a pet also. This is a dog. Dog is a masculine gender and feminine gender of dog is bitch. So you all are aware of these masculine and feminine genders. Now a new thing today which we will learn is the common gender. बेटे हमने मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बारे में पढ़ा कि जिसमें हमें क्लियरली पता चलता है कि जो बॉयज की कैटेगरी में आते हैं या फीमेल्स की कैटेगरी में आते हैं, दैट आर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। बट लेकिन कुछ नाम्स ऐसे होते हैं या कुछ जेंडर्स ऐसे होते हैं जिनके नाम से हमें नहीं पता चलता whether they are masculine or feminine. If suppose I tell you a sentence, if I ask you, I met a teacher, क्या टीचर कहने से आपको ये पता चल रहा है कि वो एक फीमेल टीचर है या मेल टीचर है? नो, तो दैट इज अ कॉमन जेंडर। हम आपको पेरेंट टीचर्स मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं, क्या हम मम्मा को इनवाइट करते हैं या पापा को इनवाइट करते हैं? नो, वी इनवाइट द बोथ। हम पेरेंट्स से ये नहीं पता चलता कि हमने मम्मा को इनवाइट किया या पापा को इनवाइट किया, तो दैट मीन्स पेरेंट्स वर्ड इज अ कॉमन जेंडर। नाउ आजकल आपको सबको पता है कोविड का सीन चल रहा है। नाउ हु आर एक्टिंग गॉड एज अ गॉड ऑन अर्थ? दैट इज आवर डॉक्टर्स। सो क्या डॉक्टर के कहने पर, अगर मैं कहूँ येस्टरडे आई मेट अ डॉक्टर, क्या डॉक्टर के कहने से आपको पता चल रहा है कि आप एक लेडी डॉक्टर से मिले या एक मेल डॉक्टर से मिले? नो, सो डॉक्टर वर्ड इज अ कॉमन जेंडर। नाउ आई एम शोइंग यू सम फ्लैश कार्ड्स। दिस इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पिक्चर से आपको पता चल रहा है शी इज अ लेडी डॉक्टर एंड ही इज अ मेल डॉक्टर। बट अदरवाइज अगर हम आपको वर्ड डॉक्टर बोले तो डॉक्टर से नहीं पता चलता कि वो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, तो डॉक्टर वर्ड इज अ कॉमन जेंडर। सिमिलरली इफ आई से शी इज अ लेक्चरर, अब हमें शी से पता चल रहा है कि ये जो लेडी है शी इज अ फीमेल लेक्चरर। बट लेकिन अगर हम ये कहें आई लर्न माई थिंग्स फ्रॉम अ लेक्चरर और अ प्रोफेसर, तो हमें नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल है। As we learned, common gender is used for both males and females। यानी कॉमन जेंडर्स कौन से होते हैं बेटा? जो हम मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी जिससे हमें नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल, लेकिन हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्टर, डॉक्टर, सिंगर, लेक्चरर, पेशेंट, प्लेयर एंड मेनी अदर्स। So this is a teacher, professor, lecturer, lawyers, doctors,
These all are common genders. क्यों है ये common genders? क्योंकि हमें इनके नाम से नहीं पता चलता whether they are male or female. Like your grandparents. Grandparents क्या हैं? Common gender. बट लेकिन अगर आप उनको सेग्रीगेट करते हैं ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडमदर क्या है? फेमिनाइन जेंडर और ग्रैंडफादर क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर। नाउ आवर फोर्थ कैटेगरी इज न्यूटर जेंडर। सी हियर, न्यूटर जेंडर। थोड़ा सा एक इजी याद करने का तरीका क्या है? न्यूटर स्टार्ट्स विथ एन एंड न्यूटर जेंडर में सब चीजें क्या आती हैं? Which are non-living, यानी जो lifeless things होती हैं। न्यूटर starts with N and non-living starts with N। तो ऐसे आपके लिए याद करना easy हो जाएगा कि non-living things जितनी भी होती हैं they all are neuter gender। Like this pointer, does pointer has a life? No, so this is a neuter gender। Similarly, box, blocks, these are neuter genders. Cylinders, these are neuter genders. Saucepans, these are neuter genders. Whatever, whichever noun which is lifeless, जिसमें life नहीं है, non-living है, they are called neuter genders. Yes, neuter gender. Just now I told you that neuter genders are used for lifeless or non-living things. It is neither masculine nor feminine, यानी ना न्यूटर जेंडर ना तो मैस्कुलाइन होते हैं ना ही फेमिनाइन होते हैं, यानी उनका कोई ऐसे जेंडर मैस्कुलाइन या फेमिनाइन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बुक को आप गर्ल या बॉय की कैटेगरी में नहीं कर सकते। रॉकेट को भी आप गर्ल और बॉय की लिए कैटेगरी में नहीं यूज़ कर सकते। टेबल, न्यूज़पेपर, चेयर, अर्थ, फैन, रूम, ये सब क्या है? न्यूटर genders। Now children, you need to learn this masculine and feminine and this is your homework too। इसमें बेटा आपको क्या करना है? आपको मैस्कुलाइन जेंडर का फेमिनाइन जेंडर्स लर्न करने हैं और फेमिनाइन जेंडर्स के मैस्कुलाइन जेंडर्स लर्न करने हैं। जैसे प्रिंस, प्रिंसेस, प्रिंसेस, प्रिंस और प्रिंसेस कौन होते हैं? राजकुमार, राजकुमारी। लायन, लायनेस। वुमेन, मैन, वुमेन। बेटा देखिए वर्ड देखिए, हेडमास्टर इनका फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? हेड मिस्ट्रेस। स्पेलिंग देखिए, हेड मिस, MIS, ट्रेस, TRESS। एम्परर, एम्परर कौन होते हैं बेटा? महाराजा। और एम्प्रेस कौन होती है? महारानी। नाउ लुक एट द स्पेलिंग, एम्परर EMPEROR और एम्प्रेस की स्पेलिंग क्या होती है? EMPRESS। द नेक्स्ट वर्ड इज नेफ्यू एंड नीस। आप बॉयज़ अपने चाचा के क्या होते हैं या बुआ के क्या होते हैं? नेफ्यू होते हैं। और गर्ल्स अपनी चाचा बुआ की क्या होती हैं? नीज होती हैं। लेकिन कुछ बच्चे स्पेलिंग लर्न करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। वो नीज की स्पेलिंग लर्न करने के बजाय नाइस, NICE लिख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। सो लर्न द स्पेलिंग केयरफुली, NIECE। नाउ मॉन्क, नन। मॉन्क और नन कौन होते हैं बेटा? जैसे हमारे मंदिर में पंडित जी होते हैं, पंडिताइन जी होती हैं, ऐसे ही बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में या चर्च में मॉन्क और नन होते हैं। नाउ लुक एट अनदर वर्ड, टाइगर, टाइग्रेस। टाइगर यू ऑल नो बेटा, टाइगर की स्पेलिंग देखिए, TIGER, टाइगर। एंड द फेमिनाइन जेंडर ऑफ टाइगर इज टाइग्रेस, TIGRESS, यानी आर से पहले टाइग्रेस में ई नहीं आएगा। नाउ लुक एट द अनदर वर्ड, दैट इज ड्यूक एंड डचेस। ड्यूक क्या होता है बेटा? ड्यूक जैसे हमारे यहाँ किंग एंड क्वीन होते हैं, ऐसे ही कुछ कंट्रीज़ में किंग को ड्यूक कहते हैं और वहाँ की क्वीन को डचेस। नाउ लुक एट द स्पेलिंग, ड्यूक DUKE और डचेस DUCHESS।
double S. So learn this, and then later we will learn in the sentences how to convert masculine to feminine and feminine to masculine. Stay home, kids, and stay safe. Happy learning. Bye.